Hello, investors and traders. Today we are going to look at the company called Blue Star. Currently, this company has got various products: room air conditioners, water purifiers, air coolers. So this is the website of Blue Star, where how it was founded, which year it was founded, and there are certain products where they have this "एक cooler दो का दम," that sort of tagline. One water cooler for all seasons. So this is a water cooler. Uh, and they have different room air conditioners. Then they are also into commercial air conditioning, etc. They are into inverter split ACs, advanced range of air conditioners, fixed speed split ACs, window ACs, portable ACs, and there are wide range of ACs that they have: super energy efficient ACs, smart Wi-Fi, heavy duty hot and cold ACs. They also have air purifiers. Then these are all the air purifiers which Blue Star is manufacturing. These are all the air purifiers. So range of air purifiers, air conditioners, etc. Blue Star is also into commercial and corporate air conditioning of these all these buildings. The biggest trigger now, which is going to be in future, is data centers air conditioning. So even the data center segment is also require air conditioning. So that also will be a major trigger for Blue Star. Now let us look at the Blue Star's fundamentals here, more or less of the numbers, financial numbers here, how they have performed, what is the market cap, etc. The market cap is 36,000, around 36,413 crores. 87 is the P, very high P, richly valued. Here also there is no recommendation. There is a disclaimer that this stock may be having in my portfolio, so this is not a recommendation to buy or sell Blue Star. At this price, investors should exercise caution. This is just to give a highlight of how this company is into, which are the products and how it is performing up to date, and what are the key triggers going ahead. So ROC is 25%, ROE is 21%, very well managed company. Currently the price is around 1700 plus of Blue Star. This is the chart of Blue Star. If you see here, it is of 784 in July 2023. So in 1 year, from 784 it has gone all the way to 1700. So it has given a good returns to investors. It has reduced the debt, almost it is debt free. Who are the key competitors? Voltas is the biggest competitor, plus there are LG, Samsung, etc. These are non-listed players. Voltas is the biggest competitor here, Johnson Controls, etc. Dakin also is a big competitor for this. Quarterly results, if you see, 3328 was the sales as compared to 2624. So this quarter, June quarter, will be going to be very good quarter. So we'll have to see how the quarterly results pan out. Net profit 160 crores of March. That was a good and operating margin is around 7%. So here this company has an operating margin of very low. So this has to be improved, but the dependence on copper prices also plays a key role. That is the raw material prices. And copper prices go up, then accordingly their margins get impacted. That is to be borne in mind. Sales yearly sales 9,600 crores. So this is a 414 crore net profit, and if you see the compounded annual sales growth 31%, compounded profit growth 77%, very good. Balance sheet note, zero debt company. Cash flow from operation 289 crores. It has generated cash in the year 2024, which can be used for any capex requirements. Shareholding pattern 36% with promoters, 15.93 with FIIs, 25% with domestic investors. So it is highly owned. It is a very highly owned stock. So highly owned stocks में क्या होता है कि नए players जो है existing FIIs, etc. already are holding Blue Star right from quite a few number of days. So there, in case of any further buying, new FIIs or new institutions should come. To that extent, highly overowned stocks, what happens is that they are highly researched, highly overowned, highly researched. तो इसमें क्या होता है कि तुरंत डिस्काउंट हो जाता है, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज चैनल चेक होता है,
अगर मार्च अप्रैल में सेल्स बढ़ा, अगर एसी का, एयर कूलर का, रेफ्रिजरेशन का बढ़ा, कोई ऑर्डर मिला, तो ये तुरंत मार्केट में किसी को खबर आ जाती है और तुरंत वो उसका डिस्काउंट, वो द प्राइस गोज अप। तो दिस इज द डाउन साइड ऑफ स्टॉक्स वेयर विच आर हाईली ओवर ऑन, हाईली ओवर रिसर्च। तो इसमें एक ही चीज़ ये ऐसी होती है कि इसमें जिसको जिसको न्यूज़ आती है चैनल चेक से, तो वो तुरंत 10 शेयर्स में आ जाता है उसका। ये ब्लू स्टार इस कंपनी इज इंडियाज एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, एमईपी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। तो ये तो आपको देखना है कि एयर कंडीशनिंग, एमईपी कॉन्ट्रैक्टिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। सो इट मेंटेन्स 2 million tons of air conditioning and refrigeration equipment presence in 18 countries। तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल क्या है इसका, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, आफ्टर सेल्स एंड R&D। रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, इंटरनेशनल इंडिया इज 94%, इंटरनेशनल 6%। एंड टू एंड मार्केट्स क्या क्या है, रेसिडेंशियल है, लाइट कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एंड मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे अभी रियल इस्टेट में काफ़ी सारा बूम है, तो रियल एस्टेट में, रेसिडेंशियल में काफ़ी सारे एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी यूज़ होंगे। लाइट कमर्शियल है, कमर्शियल्स में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उसमें सेंट्रल एयर कंडीशन लगता है, स्कूल्स में लगता है, उसके बाद में डेटा सेंटर्स में लगने वाला है, इंडस्ट्रीज में लगने वाला है। सो ये एयर कंडीशनिंग सेगमेंट इज गोइंग टू बी अ बिग ग्रोथ एरिया इन फ्यूचर with the advent of the heat waves etc and overall climate etc. It has got 7 manufacturing facility in India, then plan to strengthen the presence USA and Europe पे strengthen करने वाले हैं। 3 year CAGR revenue is around 17%। इसमें कौन से B2B और B2C बिजनेसेस कौन कौन से हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एमईपी प्रोजेक्ट्स, सेंट्रल एसी डिवीजन, आफ्टर सेल सर्विस। सो दिस इज वन ऑफ द वर्टिकल। यूनिटरी प्रोडक्ट्स आर बेसिकली फॉर रेसिडेंशियल रूम एसीज, एयर कूलर्स, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स एंड प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में सॉल्यूशन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन इन मेडटेक, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड डेटा सिक्योरिटी। तो ये 3 वर्टिकल्स है इसके ब्लू स्टार के। अब इसके प्लांट कहाँ पे, 7 प्लांट्स हिमाचल प्रदेश, अहमदाबाद, वाड़ा 1, वाड़ा 2, श्री सिटी प्लांट, दादरा एंड हिमाचल प्रदेश, दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। अब इसका बिजनेस सेगमेंट्स ओवरव्यू देखते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेंट्रल एसी वेंटिलेशन प्रोजेक्ट्स, प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स, फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ उन्होंने ऑलरेडी कमीशन किया हुआ है। नोएडा में डेटा सेंटर का यहाँ पे कमीशन हुआ है। देन बेंगलोर में ये विस्ट्रॉन इन्फोकॉम हुआ है, पंजाब में ये प्लांट हुआ है, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, हाइंस ग्रुप एंड जॉकी फैक्ट्री कटक। तो ये सब इनका इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे है, इसका चिलर्स का करके प्रोडक्ट्स है, डक्टेड प्रोडक्ट्स है और VRA प्रोडक्ट्स है। तो इसमें एक कंप्लीट रेंज ऑफ इनकी प्रोडक्ट्स या सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। आफ्टर सेल सर्विस इनकी यहाँ पे है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में विच आर द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, दुबई में एयर वेस्ट अलवास्ट शॉपिंग सेंटर में इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, वॉक सिनेमा दुबई में, देन एट बेट इंटरनेशनल स्टेडियम अल बैट अल सलाम दुबई मलेशिया में, और बॉयरविक ऑफिस एंड वेयर हाउस। तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है। यूनिटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से, कूलिंग एंड प्यूरिफिकेशन अप्लायंसेस, इन्वर्टर, स्प्लिट एसीज, फिक्स स्पीड एसी, ये इनके सारे प्रोडक्ट्स है। तो इसमें इंस्टॉल बेस ऑफ 2.5 मिलियन यूनिट्स का इंस्टॉल बेस है, वाइड रेंज ऑफ एसीज है। उसके बाद अदर कैटेगरीज में एयर कूलर्स, वाटर प्यूरिफायर्स एक्सेट्रा है। ये कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में डीप फ्रीजर्स, बॉटल कूलर्स, कोल्ड रूम्स एक्सेट्रा ये सब चीज़ है। प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में मेडटेक सॉल्यूशंस में है, डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में है इनके प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में मटेरियल टेस्टिंग, एनडीटी सॉल्यूशंस, मेट्रोलॉजी सॉल्यूशन, ये सब चीज़ है। इसमें स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इंजीनियरिंग टर्नकी प्रोजेक्ट्स एंड वैल्यू एनहेंसिंग सर्विसेज। तो ये सब चीज़ उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है। अब इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कि Q4 का कैसे था। यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू आप देखो कि Q4 का 2624 एंड 3328, तो ये जंप हुआ है। एबिटा में आप देखोगे तो Q4 23 के बदले Q4 FY24 में एबिटा 7.3% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 214 एज अगेन 146, ईपीएस भी बढ़ा है 4.47 से 7.77। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसमें ओवर ईयरली परफॉर्मेंस 9,685 करोड़ की कंपनी है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 557 करोड़, अर्निंग पर शेयर 20.77 का अर्निंग पर शेयर है। बैलेंस शीट बोरोइंग्स कुछ भी हार्डली कुछ है, मतलब डेट फ्री कंपनी है ये।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33%, बहुत बढ़िया है। ईएमपी एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में इनका रेवेन्यू देखोगे तो 4,700, 4,000 से 4,700 हुआ है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल 65% है, बहुत हाई है, वेरी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन ईएमपी एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दैट इज टू बी नोटेड। ऑर्डर्स कितना है 5,477, कैरिड फॉरवर्ड ऑर्डर्स 5,466। यूनिटरी प्रोडक्ट्स में 4,592 का वॉल्यूम हुआ है, सेल्स हुआ है। सेगमेंट रिजल्ट्स देखोगे तो आप रिटर्न ऑन कैपिटल 36%, बहुत बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल है। और प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में सेगमेंट रेवेन्यू 378 करोड़ ने क्या बोला है कि रेटिंग कंटिन्यूज टू रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिस्क प्रोफाइल और ऑफ ब्लू स्टार लिमिटेड, ड्रिवन बाय डाइवर्सिटी इन रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड यूनिटरी प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स। Rating factors in strong market position of Blue Star Limited in EMP segment with healthy order book, gradually increasing market share in the UP segment, that is the unitary product segment. Financial risk profile is also marked by high net worth, ये बहुत बढ़िया factors है, and strong capital structure, तो ये क्रिसिल ने बोला है। These strengths are partially offset by large working capital requirements susceptible to cyclicality in demand from end user industries। तो इसमें उन्होंने रिस्क भी दिया है कि अगर इसका स्ट्रेंथ तो है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर, नेटवर्क अच्छा है, उसका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है यूनिटरी प्रोडक्ट्स में, तो ये सब कुछ बढ़िया है। रिस्क क्या है इसमें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी लगती है इसको, तो बैंक से इनको वर्किंग कैपिटल के लिए उनको आइदर लोन्स लेने पड़ेंगे या तो इंटरनल एक्रूवल से उनको बहुत सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसा रहता है, जो जब बेचेंगे तब उसको रियलाइज होता है, तो थोड़ा लंबा साइकिल रहता है इसमें। और डिमांड अगर समझो कम होता है, अगर डिमांड कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहेगी तो ही ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूस बेसिस पे रहने वाला है। अब ऑपरेटिंग इनकम में क्रिसिल ने क्या बोला है कि ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज बाय 22% ऑन ईयर, लेड बाय ग्रोथ ऑफ 27% इन यूनिटरी प्रोडक्ट सेगमेंट, तो 27% का ग्रोथ हुआ है यूनिटरी प्रोडक्ट में, 17% ईएमपी सेगमेंट। राइज इन द यूनिटरी प्रोडक्ट सेगमेंट वाज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन, जैसे फेस्टिव सीजन थर्ड क्वार्टर का काफ़ी अच्छा सारा इनका प्रोडक्ट्स सेल हुआ है और उसका ग्रोथ भी हुआ है काफ़ी सारा टॉप लाइन में। एंड फर्दर हाई डिमांड इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2024, ग्रोथ इन ईएमपी सेगमेंट एडेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेंटर। ये देखो, ये इसमें अभी बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है ईएमपी सेगमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, डेटा सेंटर से आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से आएगा, जिसमें हेल्दी ऑर्डर बुक ऑफ 5,697 करोड़ एज ऑफ मार्च 2024, वो बहुत ही बढ़िया नंबर है। 5,697 का ऑर्डर बुक है मार्च का। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव फ्रॉम 1% थोड़ा बढ़ा है टू 6.9% इन 24। क्रिसिल आगे बोलता है कि फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल इज मार्क्ड बाय हाई नेटवर्थ, स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर, नेटवर्थ इंक्रीज टू 2,500 करोड़ एज ऑफ मार्च 24 कंपेयर टू 1,252, तो ये भी बहुत बढ़िया है। कंपनी रेस्ड इक्विटी बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफ 1,000 करोड़, डेट रिड्यूस टू 167 करोड़ एज ऑफ मार्च फ्रॉम 570, बहुत बढ़िया नंबर है। डेट इन्होंने 578 करोड़ से 167 करोड़ कम किया है, तो इसका इंटरेस्ट में सेविंग होने वाला है। इंटरेस्ट सेविंग होगा तो डायरेक्टली आपका बॉटम लाइन में इफेक्ट आएगा, तो वो भी बढ़ने वाला है। डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अबोव 10 टाइम्स, ये तो बहुत ही बढ़िया नंबर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अबोव 10 टाइम्स। लिक्विडिटी रिमेन स्ट्रॉन्ग विद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ 626 करोड़ के कैश है एज ऑफ 31 मार्च, तो ये कैश रिच कंपनी है, कंटिन्यूसली कैश एक्रूवल्स हो रहे बिजनेस में, तो ये सब बहुत बढ़िया नंबर्स है। अब यहाँ देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग सेक्टर का टेलविंड्स क्या है, ये सेक्टर कैसे ग्रो करेगा। इन 2024 रेवेन्यू इन द एयर कंडीशनर मार्केट इन इंडिया अमाउंट्स टू $5.88 billion। इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एनुअली बाय 16.56, 17% का CAGR फ्रॉम 2024 टू 2029, तो ये सेक्टर ग्रोथ 17% सेक्टर ग्रोथ है। मेरे हिसाब से तो ये इससे भी ज़्यादा होगी, बट करेंटली इट इज प्रोजेक्टेड एट 17% सेक्टर ग्रोथ। China generate highest revenue, which is $15,980 million in 2024. In terms of per household revenues, India $20.38 in 2024, तो ये काफ़ी इसमें स्कोप है बढ़ने का। लुकिंग अहेड, वॉल्यूम इन द एयर कंडीशन मार्केट एक्सपेक्ट टू रीच 22.9 मिलियन पीसेस यूनिट्स, तो ये आप देखोगे तो इसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ है एयर कंडीशनिंग में। देयर इज एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 17% in 2025. Average volume per household in the AC market is expected to be 0.04 pieces units in 2024, और इसमें सबसे बड़ा ये है कि राइजिंग मिडिल क्लास
and increasing urbanization, also industrialization, commercial buildings, data centers, इससे एयर कंडीशनिंग मार्केट काफ़ी सारा इम्प्रूव हो सकता है. So this is all about Blue Star Limited. I hope you like this channel and this is the fundamentals of Blue Star which was covered here. And there are a lot of information available on the web, and you can also study the company. ये प्योर फंडामेंटल्स का चैनल है जहाँ पे फंडामेंटल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस मॉडल का डिस्कशन होता है. सेक्टर क्या, कैसे ट्रिगर्स क्या है सेक्टर में, कैसे ग्रोथ होने वाली है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें, और रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन से कैसे मार्जिन कम ज़्यादा होते हैं, कैश फ्लो कैसे जनरेट करती है कंपनी, और कैपेक्स कितना करती है, आरओसी आरओई कितना है, ये सब चीज़ फंडामेंटल फैक्टर है जिसके ऊपर ये कंपनी है. दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. तो दिस इज ओनली टू एज एन एजुकेशनल वीडियो टू गिव मोर पर्सपेक्टिव ऑन द कंपनी Blue Star. So I would request you to please like my channel and subscribe to the channel, and thank you very much for viewing this video. Thank you.